Hello students, welcome back to the lecture series by Biogenesis. In this lecture, I'll be starting off with classical genetics. Although there are different branches of genetics like classical genetics, molecular genetics, also known as molecular biology, we have evolutionary genetics where everybody deals with a concept of Hardy-Weinberg equilibrium. We also have microbial genetics, which is important level for MSc and PhD entrances. But as far as for most of the undergraduate examination and MSc entrances are concerned, we have something in common which is going to be asked everywhere, and that area is known as classical genetics. Now, I just want to make sure that as an introduction to classical genetics, you are quite clear that what areas are actually included in the in the topic of classical genetics. We are definitely going to deal with something called as Mendelism. We do have something called as deviation from Mendelism, right? So first in genetics, I'll be dealing with Mendelism topic. Then we also have something called as deviations from Mendelism. Deviation from Mendelism का क्या मतलब है? Here we study different topics like linkage, which is actually an exception to the law of Mendelism. Polygenic inheritance, once again, which do not follow many laws of Mendelism, epistasis and so on. Actually, when I say deviation from Mendelism, where is the basic difference that it lies? Basic difference कहाँ पर है? According to Mendel, whatever the genotype an organism has, जैसा कि आप पढ़ते आते हैं कैपिटल T pea plant था तो वो tall होगा. Mendel के according environment had no influence on the final phenotype or appearance. He never said that capital T will be tall when, let's say, it is found in a soil having this much water or air having this much humidity. Environmental factors did not have any importance according to Mendel, for which he was also criticized. But later on, as research in genetics proceeded, we came to know that there are many other factors apart from the Mendelism laws, but although the classical foundation are still led by Mendel. Well, now another important thing that we have in case of classical genetics is something called as cytogenetics. So what do we mean by cytogenetics? That will be the third part that I'll be taking in classical genetics. So study of structure, function and abnormality of chromosome is called as cytogenetics. Basic class 12th lectures, class 12th NCERT, there were many syndromes like Down syndrome, Turner syndrome, which were actually caused due to chromosomal abnormalities. That section comes under the topic of cytogenetics. So I hope everybody is clear with that classical genetics, we will be dealing with certain areas where we have Mendelism first, फिर उसके बाद deviation from Mendelism पढ़ेंगे, and third cytogenetics पढ़ाएंगे. Let's quickly move on to the topic of Mendelism, and then in today's lecture my main aim is to clear two important terms to you. Those terms are allele and homologous chromosome. Everybody understand these two terms, but if anyone asks a definition of allele word or homologous chromosome word in the examination, then it will be a lot of problem. So we have to understand that sometimes even in interviews we can give wrong answers for the definition of alleles or homologous chromosome. Let us come to the concept of Mendelism. Mendelism is an entire foundation or an entire area of genetics which has been led by a scientist known as Gregor Johann Mendel, and the timeline of Mendel was from 1822 when he was born to 84, right? He's also known as father of genetics, but an interesting information, father of genetics का title Mendel को उनके death के बाद मिला, which is called as the posthumous title, right? उनके काम को recognition easily नहीं मिला. Mendel's work was not given due recognition when he was alive. The main reason was he applied mathematics for the first time in biology. For biological problems, he was applying statistics, obtaining mathematical ratios 9331 and 1:1:1 and so on. So everybody was confused how in biology such things can be applied, right? So in 1856, in the year 1856, he published his experimental results in a scientific journal called as the Proceedings of the Brunn Society of Natural History. So Proceedings of Brunn Society of Natural History में क्या था? उन्होंने अपने रिसर्च को, whatever experiments on pea he had performed, he published that entire result in this journal. But 1856 से लेके कई सालों तक आगे, several years ahead, his work was not being recognized. उनको वो due title या respect नहीं मिला.
in the year 1900, meaning several years after death of Mendel, because Mendel died in the year 1884 और उन्होंने अपना रिसर्च कब पब्लिश किया था 1856 में, एंड आफ्टर दैट 1884 में उनकी डेथ हुई. 1900 में यानी 1900 तक Mendel's work was not given recognition. In 1900, after his death, 3 scientists independently repeated Mendel's experiment, and they obtained the same ratio which Mendel had given, 3:1, 9331, or 1:1:1, and everybody was surprised that Mendel's results were actually correct. And therefore, after his death, somewhere in the year 1900, after the rediscovery by 3 scientists, Hugo de Vries, Coryn, and Schermack, right? So Hugo de Vries, Coryn, and Schermack, Mendel was given due recognition of being called as father of genetics. But before I move ahead in this case, let us understand an important thing कि sometimes even we can be basically confused. So I hope everything is clear. Mendelism and the timeline, and in 1856 when he published his experimental result, then coming on to 1900 when results were actually being rediscovered. Now, a very important thing which I want to mention now, that sometimes even in the examination we can get confused that what if somebody asks that how many Mendel's rules are there. आपसे कोई पूछता है Mendel's के laws of inheritance कितने थे, right? Mendel's laws of inheritance, how many in number? अभी NCERT का बात करें या most of the books की बात करें, so it has been mentioned that there are 3 rules, but the original paper that was being published by Mendel, there he published actually 4 rules, or the information of 4 rules. Let me just briefly mention the name of those 4 rules. So Mendel's law में law 1 was called as it was known as the law of pair of unit factors. So law of pair of unit factors. Then second number law, or the law number 2. So second law was known by the name of law of dominance. So rule number 2 was being known by the name of law of dominance. Law number 3 was known by the name of law of segregation. Law of segregation. And then the next thing that we have is law number 4, which is also called as law of independent assortment. So law of independent assortment. And one of the most important thing that we need to understand कि 4 rules हैं, law 1, 2, 3 and 4, and most of the books में first and second rule को combine करके sometimes it is also simply written as law of dominance. So आपके आज के published literature में कभी कभार rule number 1 and rule number 2 they might be combined in some books, and they might write it as law of dominance, then law of segregation will become second rule, law of independent assortment will become third rule. But that's not the actual information. We have 4 rules which are present there. Now, as my lecture title is given that alleles and homologous chromosomes will be the most important term that will be discussed today. मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए I will have to give you a brief idea, very brief idea regarding the law number 1, which is called as law of pair of unit factor. But let me tell you one important thing, that Mendel's rules or 4 rules have one thing in common. Mendel 4 rules or laws of inheritance, they have one thing in common, that all rules are valid for diploid sexually reproducing individuals only. Sexually reproducing organisms only. Now this is a very important information. मेंडल का रूल किसी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करे उस पर नहीं लग सकते. दे आर टेक्निकली वैलिड फॉर व्हाट? diploid and sexually reproducing individual, and everybody understand the meaning of diploid. Sometimes we write it simply as 2n लिख के बोल देते हैं. So ploidy level की अगर हम बात करें, so diploid and sexually reproducing individual पर ही लगेगा जो अपने आप में diploid है, and they produce haploid gametes and then zygote formation and everything happens. So I hope that makes sense to everyone. Now I am going to list something about the law of pair of unit factors. Law of pair of
यूनिट फैक्टर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की इस रूल को एक लाइन में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे एंड यहाँ से हम अलील और होमोलोगस क्रोमोसोम टर्म्स की तरफ जाएंगे. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज और दिस लॉ स्टेट्स दैट. सो इट स्टेट्स दैट every character has two possible traits. So every character has what? Two possible traits, and each trait is governed by a factor. Each trait is governed by a factor. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात, फैक्टर टुडे नोन एज जीन्स, टुडे कॉल्ड एज जीन्स, राइट. Factor today called as genes. And another statement, and factors always occur in pair. Factors always occur in pair on homologous chromosomes. Factors always occur in pair on homologous chromosomes. यहाँ से हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसको हमें आज समझना होगा, फिर मैं आपको टर्म अलील्स की तरफ भी लेकर जाऊंगा. बट इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं. दैट व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि लॉ ऑफ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर का एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसको समझना होगा if we want to understand the concept of homologous chromosome and the allele. So what I am trying to say over here, that every character has two possible traits and each trait is governed by a factor. अब यहाँ पर अगर एक इम्पॉर्टेंट बात करें, लेट मी वंस अगेन गिव यू द एग्जांपल ऑफ पी ओनली. अगर पी की बात करें, पी प्लांट जिस पर मेंडल का पूरा रिसर्च बेस्ड था, राइट. इफ वी टॉक अबाउट द पी प्लांट के केस में 2n इज इक्वल टू 14, राइट. 2n लिखने का मतलब क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट हाइट इज अ कैरेक्टर. प्लांट की जो हाइट है दैट इज अ कैरेक्टर. प्लांट का जो हाइट है वो आपका क्या है? कैरेक्टर है. इस कैरेक्टर के सब लोग क्लास 12th से दो ट्रेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक टॉल का पॉसिबिलिटी, एक ड्वार्फ का पॉसिबिलिटी. ठीक है जी, ये सब लोगों को पता है दैट टू ट्रेट्स आर देयर. सो कैरेक्टर क्या है? प्लांट हाइट. और दो ट्रेट्स क्या है? टॉल और ड्वार्फ. और सब लोग ये चीज़ पढ़ते हुए आए हैं दैट टॉलनेस इज गवर्न्ड बाय अ जीन कॉल्ड एज कैपिटल टी जीन. दिस इज गवर्न्ड बाय अ जीन कॉल्ड एज स्मॉल टी जीन. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं यहाँ पर जीन बोल रहा हूँ, आप सब लोगों ने अलील पढ़ा हुआ है, राइट. एक्चुअली में अलील्स आर नथिंग बट वो भी एक प्रकार के जीन ही हैं. बट वो जीन्स जो एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं, उनके लिए जेनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है. क्या वर्ड यूज किया जाता है? अलील्स. यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन अलग अलग बोलने से बेहतर है दैट वी शुड गिव देम अ न्यू वर्ड कॉल्ड एज अलील. मतलब द जीन्स विच कोड फॉर two traits of a particular character, they can be called as allele. But do not worry, allele definition will be coming in detail, much more detail as of now. What I just want to say, I have introduced two new words for you. One is allele, which remains a question mark. If somebody asks me in an interview, how will you define allele? वो हमें समझना होगा. And question number 2, can you define the word homologous chromosome or not? But let me tell you, every character has two possible trait. जैसे कि हमने बोला प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर. दो ट्रेट क्या है? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ईच ट्रेट इज गवर्न्ड बाय अ फैक्टर. सही बात है. यस, फैक्टर आर टुडे कॉल्ड एज जीन्स. मेंडल एट दैट टाइम ही यूज्ड द वर्ड फैक्टर बट दे वर रीनेम्ड लेटर एज जीन्स, राइट. तो जैसा आपने देखा, कैपिटल टी जीन एंड स्मॉल टी जीन, राइट. सो ईच ट्रेट इज गवर्न्ड बाय फैक्टर. सही बात है. टॉल इज गवर्न्ड बाय कैपिटल टी फैक्टर, ड्वार्फ इज गवर्न्ड बाय स्मॉल टी फैक्टर. लेकिन आज के नाम पे उनको जीन कहते हैं. बट अगर सभी को जीन नाम दे दिया जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था. जेनेटिक साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया? इफ टू जीन्स दे आर कोडिंग फॉर ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, वी मस्ट गिव देम अ न्यू नेम कॉल्ड एज अलील, तो ताकि हमारे लिए नेमिंग इजी रहे. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव इंट्रोड्यूस फॉर यू. Term number 1, homologous chromosome. Term number 2, allele. And let's get started with the explanation of that. So I am going to define कि homologous chromosome क्या बात है, क्या कंसेप्ट है, और उसी के साथ आपको क्लियर होगा कि ये फाउंडेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है कभी कभार. You will sometime even get confused to define this term. So homologous chromosome
के कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। राइट नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, so let me first define it for you. It is a pair of chromosomes. It is a pair of chromosomes, right? Pair of chromosomes which contains the same set of genes, which contains the same set of genes in exactly the same order, in exactly the same order, but the alleles may be same or different. Alleles may be same or different, right? So alleles may be same or different. So let me highlight few keywords over here. So सबसे पहली बात क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम कोई अकेली चीज नहीं है, दो क्रोमोसोम्स का सेट है। Which contain another keyword same set of genes। बहुत सही बात है, सेम सेट ऑफ जीन्स हैं, वो भी आपको फिगर के साथ क्लियर होगा। इन एग्जैक्ट सेम ऑर्डर, प्लीज वेट फॉर द फिगर, तब आपको समझ आएगा। बट अलील्स में भी सेम और डिफरेंट। नाउ आई विल जस्टिफाई ईच एंड एवरी वर्ड विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर बनाता हूँ। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग, राइट? ह्यूमन सिस्टम 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, सबको क्लियर है। और 46 क्रोमोसोम को कभी कभार ऐसे भी लिख दिया जाता है, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। 23 पेयर्स ऑफ व्हाट? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट? 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, एक बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए, दैट इफ वी टॉक अबाउट 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एवरीबडी इज क्लियर दैट वी हैव द मेल गैमीट, राइट? वी हैव द फीमेल गैमीट। सो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, राइट? 23CH। यहाँ पर कितने? 23 क्रोमोसोम्स हैं। थोड़ा सा नोटेशन यूज कर लेते हैं, काम करते हैं। मेल क्रोमोसोम्स को ब्लैक कलर से नोटिफाई कर देते हैं, राइट? और फीमेल जो डिराइव्ड क्रोमोसोम्स हैं उसको रेड कलर से नोटिफाई कर देते हैं, राइट? सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, 23 क्रोमोसोम फ्यूज हुआ, 46 क्रोमोसोम टोटल जनरेट हुए। नाउ व्हेन 46 क्रोमोसोम आर जनरेटेड टोटली, अगर हम बात करें एट द लेवल ऑफ जाइगोट, राइट? सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एट द लेवल ऑफ जाइगोट, these 46 chromosome are there in total, 23 maternal, 23 paternal, right? Maternal mother side, paternal father side, 23 क्रोमोसोम जुड़े। अभी उन सब क्रोमोसोम को न्यूक्लियस में अरेंज होना है, तो नेचर ने क्या डिसाइड किया कि द बेस्ट वे टू अरेंज देम इज टू शफल देम। शफल देम मतलब कि 23 पेयर्स बना दिए जाएंगे, राइट? 23 पेयर्स इस तरीके से बना दिए जाएंगे कि आपके सामने मान लीजिए दिस इज द पेयर 1, राइट? फिर दूसरे पेयर में इस तरीके से आपके पास जुड़े होंगे एंड सो ऑन, राइट? तो नेचर ने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल वाले क्रोमोसोम अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। नेचर ने डिसाइड किया कि उनके पेयर बनेंगे, राइट? ऐसे कितने पेयर बनेंगे? मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, दिस इज दी पेयर नंबर 1, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नंबर 2, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसे आगे चल के कितने 23 पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आपका एक मैटरनल क्रोमोसोम है और एक आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है। इसी बात के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि आप होमोलोगस क्रोमोसोम को समझ पाएं। दिस इज वेरी बेसिक एंड नॉट एवरीवन इज क्लियर विद दिस कांसेप्ट, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को, किसी को भी यहाँ पर पेयर 1 पेयर 2 किसी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पेयर इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, राइट? सो लेट अस रिप्रेजेंट वन पेयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? ये आपका मान लीजिए लेट से जो भी हमने कलर दिया ये फादर साइड वाले से है, और ये आपके सामने ये क्रोमोसोम, ठीक है जी? ये आपका फीमेल साइड वाला क्रोमोसोम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एवरीबडी नोज वन कंसेप्ट फॉर श्योर। क्या कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज क्रोमैटिड, राइट? क्रोमैटिड वर्ड सब लोग समझते हैं।
राइट। क्रोमैटिड वर्ड का क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर आर्म है, राइट, ये एक क्रोमैटिड हुआ, राइट। सो क्रोमैटिड्स को नाम दे देते हैं। ये क्रोमैटिड ए है, इसको बी बोल देते हैं, इसको क्रोमैटिड नंबर सी मान लेते हैं, इसको क्रोमैटिड नंबर डी मान लेते हैं। लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑल्सो, आई होप एवरीबडी नोज ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या है? ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिमिलरली सी और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दे आर सिस्टर क्रोमैटिड एंड सिस्टर क्रोमैटिड आर ऑलवेज जॉइंड एट अ पॉइंट एवरीबॉडी नोज फॉर बेसिक कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, या फिर बी एंड सी, या फिर बी एंड डी, क्या रिलेशन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, सो रिलेशनशिप बिटवीन ए सी, ए डी, बी सी या बी डी, दे आर ऑल व्हाट? दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सब के सब क्या होते हैं? आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमने आपके सामने क्या बात किया, दैट आपके लिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक होमोलोगस पेयर किसी एक को उठा लेते हैं। एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, सही बात है, मैटरनल पैटर्नल दिखा दिया, पैटर्नल मैटरनल यहाँ पर। सो ए और बी के बीच में क्या है? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर पे जुड़े हैं। सी और डी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर पर जुड़े हैं। सब लोगों ने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, यानी कि हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है? देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। ये भी बेसिक सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी बता रहा हूँ, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नई इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, ए बी सी डी सिस्टर क्रोमैटिड है और बाकियों की आपस में रिलेशन क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है? एक क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है। बट अभी भी हम अपने टर्म यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन के करीब नहीं पहुँच पाए हैं, जो मैंने आपके सामने लिखी थी। तो मुझे उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको समझानी होगी। डेफिनेशन को एज इट इज लिखे रहने देते हैं और फिर हम एक दो फिगर्स के साथ यहाँ पर क्लियरली समझ जाएंगे। देखते हैं ज़रा यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने अभी देखा कि हमने मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम इस तरीके से बनाए, राइट। मैटरनल एक बना दिया और सो एक फादर साइड एक मदर साइड क्रोमोसोम, जिनको हमने दो डिस्टिंग्विश्ड कलर से दिखाने की कोशिश करी, राइट, दो अलग अलग कलर से। मैं आपके सामने एक तरीका और बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर बुक्स में एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही क्रोमैटिड दिखाई जाती है, बिकॉज दूसरे क्रोमैटिड पर एग्जैक्टली सेम जीन्स होते हैं और एग्जैक्टली सेम जगह पर होते हैं, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को कुछ फॉरेन ऑथर्स बुक्स में सिर्फ एक आर्म दिखाकर भी काम चला सकते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। दिस इज वन होमोलोगस पेयर, राइट। सो दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाई इज इट पेयर? इसकी सेकंड आर्म क्यों नहीं दिखाई? बिकॉज उस पर एग्जैक्टली सेम जीन्स है, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए, डीएनए पर जीन है। तो ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट फैक्टर, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आपको मैं होमोलोगस क्रोमोसोम समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लेट से मैंने आपके सामने ये पेयर वन इस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया, राइट। ये आपके सामने पेयर वन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। मान लेते हैं ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नंबर 1। ऐसे ही बहुत सारे पेयर होंगे, लेकिन मैं दो पेयर दिखाकर आपके लिए कंपैरिजन इजी कर देता हूँ। सेकंड पेयर को भी मैं यहाँ पर इस तरीके से साथ में दिखा देता हूँ। सेकंड आर्म हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मान लीजिए आपका क्या है? पेयर नंबर 2 है। फिर आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से कितने पेयर होंगे वो मैटर करेगा, राइट। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एवरीबडी इज क्लियर कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है, राइट। क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए कंटेन जीन, तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम इज आल्सो कंटेनिंग द जीन्स। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि होमोलोगस क्रोमोसोम को दिखाने का बेस्ट तरीके यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पर दोनों क्रोमोसोम में यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर 1 है, कैरेक्टर 1 को ए जीन कंट्रोल करता है। ए जीन के दो अलील हो सकते हैं, एक डोमिनेंट अलील, एक रिसेसिव अलील। तो मैंने लिखा है कि कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। ये आपका
फादर डिराइव्ड क्रोमोसोम, या आपका मदर डिराइव्ड क्रोमोसोम। सो फादर डिराइव्ड एंड मदर डिराइव्ड, राइट। लेट्स से कैरेक्टर नंबर 2 के लिए किसी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, राइट। Now what very interesting information which I want to tell you over here कि पहली बात तो एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि किसी भी जीन का जो दूरी होता है, राइट, एनी जीन, राइट, the distance of any gene is always calculated from the centromere, and that position in genetics is called as locus, right? Locus word का मतलब क्या होता है? The distance or position of a gene with respect to the centromere। ये सबको पता है, ये पॉइंट क्या होता है आपका? सेंट्रोमेयर होता है। तो सेंट्रोमेयर से कितनी दूरी आपको याद होगा? सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट में नापते हैं इसको। सो लोकस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोमेयर। तो लोकस वर्ड यहाँ पर आएगा, राइट। तो हम आगे भी देखेंगे लोकस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है। कहने का मतलब क्या है कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स पर ध्यान से देखते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर बात करें तो इसके पास भी ए से लेकर एफ तक जीन है, इसके पास भी ए से लेकर एफ तक जीन है। सो दे कंटेन सेम सेट ऑफ जीन्स। माय पॉइंट इज प्रूव्ड। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच कंटेन ऑफ व्हाट? सेम सेट ऑफ जीन्स। देख लीजिए, इस पे भी ए टू एफ है, इस पे भी ए टू एफ है, सेम सेट ऑफ जीन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब बोलिए, इस पे भी ए के बाद बी की जीन्स आ रही है, इस पे भी ए के बाद बी की जीन्स आ रही है, बी के बाद सी है, यहाँ भी बी के बाद सी है। सो सेम सेट ऑफ जीन इन दी सेम ऑर्डर, लेकिन अलील सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट का क्या मतलब है भाई? उस कंसेप्ट को भी मैं आपको समझा देता हूँ। सेम और डिफरेंट का क्या मतलब हो सकता है? अलील्स कैन बी सेम और डिफरेंट। ध्यान दीजिए जरा, सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट क्या हुआ उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट क्या है कि ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपका फादर वाला क्रोमोसोम मान लीजिए कैपिटल ए लेके आया, ये वाला भी लकीली कैपिटल ए ले आया, तो इसको आप जेनेटिक्स में ऐसा जीनोटाइप लिखते थे, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर चांस की बात है कि शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे कैपिटल ए आ जाए और जो दूसरे पेरेंट से क्रोमोसोम डिराइव है वो उसी कैरेक्टर की सामने क्या लेके आ जाए? स्मॉल ए। तो आप इसको कैसे लिखते आए हो जेनेटिक्स में? इस तरीके से, जिसको आप हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ऐसा भी संभावना हो सकता है कि जो आपका पेरेंट सिस्टम लेकर आया है, एक पेरेंट पे यहाँ स्मॉल ए है और दूसरे पेरेंट से आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? स्मॉल ए स्ट्रक्चर आ गया। इसको आप स्मॉल ए लिखते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं इसको। वो मैं सब आगे पढ़ाऊंगा, बट आप सब लोग 12th क्लास से फेमिलियर हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। मेरी डेफिनेशन यहाँ पर पूरी हुई, ध्यान से समझिएगा कि पेयर 1 के ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम से एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच कंटेन सेम सेट ऑफ जीन। इस पे भी ए से एफ तक, इस पे भी ए से एफ तक, सेम सेट ऑफ जीन सेम ऑर्डर, ए के बाद बी, ए के बाद बी, सेम सेट ऑफ जीन सेम ऑर्डर, बट अलील्स में भी सेम और डिफरेंट। पता चला ये दोनों लकीली सेम ले आए, दोनों डोमिनेंट अलील लेके आ गए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी उस कैरेक्टर के लिए? होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों अलग ले आए तो हेट्रोजाइगस, दोनों रिसेसिव लेके आ गए तो होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये जो अगला पेयर है, पेयर 1 और पेयर 2 में आपस में कई किताबों में इनको नॉन होमोलोगस भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर 1 एंड पेयर 2 को क्या बोल सकते हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझिए। नॉन होमोलोगस का क्या मतलब है? नॉन होमोलोगस का क्लियर कट मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 से लेकर 100 तक जीन थे तो अगले वाले पे आपका 101 जीन से स्टार्ट होगा। यदि वो कोई रिपीटेड जीन या रिपीटेड कॉपी नहीं है तो यहाँ पे आपके मान लीजिए एफ है तो यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। तो यहाँ पर हमने क्या कवर कर लिया? होमोलोगस क्रोमोसोम का वर्ड आपको क्लियर है। मैं बस एक लास्ट डेफिनेशन यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ, विच इज दैट ऑफ द अलील, राइट। सो हमारा अलील का डेफिनेशन, द थिंग इज अलील आर नथिंग बट दे आर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। सो मैं यहाँ पर आपके सामने एडिशन कर देता हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अलील। तो अलील वर्ड का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट डेफिनेशन है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच कोड फॉर, सो अलील का क्या मतलब है यहाँ पर? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन
which code for contrasting traits. So which code for what? Contrasting traits and occupy same locus on homologous chromosome, and occupy same locus on the homologous chromosome, right? So they are all, height is a character, contrasting trait क्या है? Tall and dwarf, and capital T and small t, they will always be found at same position, distance from centromere, जो कि आपके सामने clear है. If I write heterozygous like this and I show that this is a pair of chromosome, right, homologous pair of chromosome, capital T, small t, their distance from centromere will always be same, which is called as locus for a particular allele. I hope that makes sense to everyone. In the next lecture, I will be moving with the different types or kinds of alleles. Thank you for watching and see you in the next lecture.